कई लोग कहते हैं अभी भजन क्या करें, जब बुढ़े होंगे मरण किनारे होंगे तब कर लेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो दुनिया देखनी है, दुनिया भोगनी है, अभी हम कैसे। एक तो बोल रहे थे जी मेरे बच्चे छोटे, मैं तो उसकी नैपी चेंज करता है क्या, तेरे बच्चे छोटे, ये क्या बात हुई। यही समय है जब तू भजन में बैठेगा तो तेरी गोदी में पड़ा हुआ बच्चा सीखेगा, देखेगा कि बाप क्या करता है। हाँ, और जब ये बच्चा सब चीजें सीख सकता था तब तुम बैठ करके बेसबॉल, क्रिकेट, न्यूज, बिजनेस न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज देख रहे थे, तुमने उस बच्चे को वही फीड कर दिया। If a child is adapting to the external environment in the womb at 4 month age, what about when the child comes out? Is absorbing everything. So, the child is learning to do cheating, learning to make money, learning how to deceive others. How to deceive others. And that deception is taught by none other than by his own parents. काश तुम भजन कर रहे होते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुमिरन करते देखते तो वो सीखते ये करना चाहिए। तुम अभ्यास कर रहे होते, योगाभ्यास कर रहे होते घर में, तुम्हारा बच्चा देख के वो भी साथ ही साथ करने लग जाता। हाँ, तुम करते अभ्यास, योगाभ्यास कर रहे होते तो तुम्हारे छोटे बच्चे भी साथ में खुशी खुशी में, बिकॉज द चाइल्ड वांट्स टू डू व्हाट द फादर डज, व्हाट द मदर डज, दे वांट टू इमिटेट यू। बट व्हाट हैव दे लर्नड फ्रॉम यू? लाइंग। झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोल के जान बचती तो झूठ बोल दो। झूठ बोलने से जान बचती है तो झूठ बोलो। आपसे वो ये नहीं सीख पाया कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसने रात देर तक तुमको जागते हुए, रात 11 बजे खाना खाते हुए देखा है, सुबह 10-11 बजे सोते हुए उठते देखा है, वो भी सीख जाता है। तो अपना तो हम समय खराब करते ही करते हैं, पर हम अपने बच्चों का भविष्य इससे ज्यादा खराब कर देते हैं। और फिर जब वो हाथ से निकल जाते हैं ना, एवरी जनरेशन इज गेटिंग मोर एग्रेसिव, then you wonder, why aren't they listening to us? Why aren't they listening to us? Why aren't they giving us time? Well, when they were young, you were busy making money, you were always out of the house, you never gave them time. Now they are making money, they will not give you time. Now you'll cry, my children don't love me. And I know one American Gujarati kid, he said to his mother, who was yelling and shouting, why did you come so late at night? And the son said, mother, I'll put you in a very bad old age home. Now I am young, I'm just 12th grade, can't do anything. But know this, I'll put you in a very bad old age home. This is the threat which the child is giving to the mother. Why? The child saw that his grandmom was shifted to an old age home. So the child has taken the lesson. Is this how you wish to rear your children? Is this what you want to teach them? Because they are learning this only. You know, sometimes I see young kids coming to ashram because their parents are meditators. 6-year-old, 8-year-old, they come to ashram and they kind of, in their childish way, they fight with me. Why aren't we allowed in the shivir when they are? I said, why do you want to come in? He said, well, they listen, I want to listen. When they meditate, I want to meditate. I said, but you're too young. He said, so what? And one 6-year-old boy sat cross-legged with his spine erect, closed his eyes, and he said, watch me. And he did little pranayam and did the Om chanting. And he said, I know it. 6 साल का बच्चा आसन लगाया और पद्मासन लगाया, मैं हिंदी।
पद्मासन लगाया, आंख बंद करी और कहते मुझे देखो, वो मुझे बता रहा है देखो मुझे। ओम की ध्वनि करी, प्राणायाम किया। कहते ठीक किया? मैं बिल्कुल ठीक किया। तो कह रहे फिर क्यों नहीं आ सकता शिविर में? क्योंकि हम शिविर में 12 साल से ऊपर बच्चे को लेते हैं, विषय बड़े गंभीर हो जाते, कभी छोटा बच्चा अभी नहीं समझ पाएगा। 6 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, 9 साल के, 12 साल के, वाई आर दे लाइक दैट? बिकॉज देयर पेरेंट्स आर मेडिटेटर्स। बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि माँ बाप अपनी छुट्टियां मेरे पास बिताने आते हैं, कलकत्ते से, नासिक से, मुंबई से। इट्स वेकेशन टाइम, where do you want to go? Children say we go to ashram, we go to Gannor. Well, what will you do there? And the children, I asked them many times कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या अच्छा लगता है? यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं। बोले नहीं, यहाँ गार्डन है, यहाँ हम खेलते हैं, यहाँ हम सेवा करते। 8 साल का बच्चा सेवा कर रहा है झाड़ू पकड़ के। And one day I saw just maybe a 4-year-old girl. She was carrying a broom which was taller than her, and she was sweeping the streets. I said, "What are you doing?" She said, "I'm doing seva." Now, why are you doing? See, this bad wind comes and spoils our gardens. I have to clean it. The broom was taller than her. Why was she doing? Because her nanny does it. उसकी जो नानी है, उसके जो नाना हैं, वो आश्रम आते हैं, हर संडे सेवा करते हैं। बच्ची सीख गई कि सेवा करनी चाहिए। What a vision to see that. बच्चे कहते हैं, एक ने कहा तुमने क्या करनी पढ़ाई? बोले हम BMS करेंगे। मैं क्यों? कह रहे हम आयुर्वेद सीखेंगे। मैं क्यों? कह रहे उससे हम लोगों की ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकेंगे। मैं तो MBBS क्यों नहीं? कैसे नहीं? हमें तो एलोपैथी नहीं करनी, हमें आयुर्वेद ही करना। Government of India is doing a remarkable work and promoting it in a very big way. Now MBBS and BMS are at par, considered at par, so the pay scale is same. At one time BMS physician was not paid very well, with peanuts. Now it is same. Government is trying to revive in a very big way. But this child is adamant to become an Ayurvedacharya, not to make money, but to serve. I want to serve. I want to bring cure to people. कहाँ से आया ये? माता पिता से। So यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, ये मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, एक अच्छे साधक बनिए। Bring some discipline in your life. क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आपके जो बेटा बेटी हैं, दिकरा दिकरी है, अगर इसको आपने परिचित नहीं कराया धर्म से, तो क्या होगा भाई? वो सिर पे नीले पीले स्पाइक्स बना के यो करते फिरेंगे सब जगह, और फिर तुम कहोगे जी ये क्या हो गए, तो हाथ से ही निकल गए। सुमिरन आज करो, सत्संग आज करो, नेक जीवन आज जियो। आज, कल पे मत छोड़ो। बुढ़े होके करेंगे ये तो सोचना ही नहीं, क्योंकि पहली बात कोई गारंटी नहीं कि तुम बुढ़े होगे, पहले ही खसक गए तो, राइट? फिर से याद करा दूं, पैर की तली में पढ़ लो, शायद कहीं स्टैंप लगी ही हो, अभी पढ़ लो एक बार, शायद मिल जाए डेट ऑफ एक्सपायरी। लाइफ इज ए ब्लेसिंग, ईश्वर का प्रसाद है, बहुत बड़ी कुदरत की ये नेमत है जो हमको मिली है, इसका बहुत सही उपयोग करना चाहिए। वो कहते खाओ, मैं पूछती हूँ किस लिए? खा के खाली फीसिस बनाए और गंदगी फैलाई, इसके लिए खाओ? खाया किस लिए? इसलिए ताकि शरीर की पुष्टि हो और फिर इस शरीर से साधना कर सको, आत्मानुसंधान कर सको, कौन हूं मैं ये जान सको, परमात्मा क्या है जान सको,
धर्म क्या है पहचान सको, बुद्धि का तल ऊंचा कर सको, चेतना का तल ऊंचा कर सको। इसलिए खाओ। किस लिए पैसा कमाओ? एक महिला बता रही थी मुझे, कह रहे उनके पति किसी पे भरोसा ही नहीं करते थे, और मुझे ये तो मालूम था कि उनके 2-4 बैंकों में अकाउंट है, पर कहाँ है हमें मालूम ही नहीं, अकाउंट नंबर क्या है मालूम ही नहीं। और फिर वो मर गया, बोले सारा पैसा सरकार को गया, हमसे छुपा रहा था, वो पक्का ही छिप गया। कहती खुद तो मरा मरदूत, हमको गरीब कर गया। गाली दे रही थी वो अपने घर वाले को, कि मैंने जिंदगी लगा दी इस बंदे के साथ, और वो बंदा देखो मेरे पे भरोसा ही नहीं किया, अब मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं क्या करूं। और फिर उन बच्चों को हमारा जो शक्ति फाउंडेशन है, पढ़ाई का खर्चा उसको हमसे लेना पड़ा। और वो रो के ले रही थी, कह रही लोग देते हैं यहाँ, मैं आपसे ले रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है। कहती मेरे घर वाले ने मेरे से इतना बड़ा धोखा किया, कहाँ कहाँ से कर्जा लिया मालूम नहीं, मारा तो लेने वाले सब आ गए, देनदार एक भी नहीं, लेनदार सब आ गए। बोले मैं तो 1 मिनट में कंगाल हो गई। बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? तो यूजुअली हम सिर्फ लड़कियों के लिए फीस देते हैं, ट्यूशन फीस। उसके केस में मैंने उसके लड़के के लिए भी कहा, मैंने इसको भी दो। लड़का छोड़ दोगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो उसका भी बेसिक एजुकेशन तो होना ही चाहिए। तो आप लीजिए पैसा, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पे उन्हें पढ़ाते रहो, स्कूल बदली मत करो और अच्छे से काम कर लो। अब बताओ, पैसा जोड़ो जोड़ो जोड़ो, बाद में सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थोड़ा देना सीखना चाहिए। हाँ, दानम वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जंगल का जो राजा है ना, शेर, वो भी दान करता है, मालूम? शिकार करता है, खाता है, और बाकी फ्रिज में रखता है, हैं? कल खाऊंगा, हीट एंड ईट। शेर ऐसा करता है क्या? The lion would leave the rest of the animal's body for other animals. And the lion is not even going to say, बोलो मेरी जय जयकार, दानी शेर महाराजा की जय, दान किया तुमको, वो ऐसा भी नहीं कहता। What a way, नहीं? तो पशुओं से सीखिए। तो हमारे संत महात्माओं ने किसी भी धर्म में हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, सब जगह में दान पर बहुत जोर दिया गया है कि तो देते रहो। एक दिन सब छोड़ोगे, अपने हाथ से दो। एक दिन सब छोड़ोगे, बेटर अपने हाथ से देना सीखो, कुछ कुछ देते रहो। बच्चे का जन्मदिन आया, बच्चे के हाथ से दिलवाओ, दो, दान करो। शादी है, दान करो। कोई मर गया है, दान करो। देना सीखो, एक दिन सब कुछ चला जाने वाला है। So the joy of giving is to be experienced, and this joy of giving is called dhanam. So keep on doing that. And don't feel proud that you are doing the charity. Feel that you are so fortunate that you got an opportunity to experience giving, the joy of giving. देने का जो आनंद है, उसकी अनुभूति मिल रही है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। मेरा है नहीं, मैंने बस वो देने का एक सुख ले लिया, हाँ, तो और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? देने का आनंद लेना चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, उसकी कृपा है ना, हम सब कुछ ले रहे हैं। श्वास भी, जीवन भी, घर भी, परिवार, संसार, ये फूल, ये तारे, ये चंद्रमा, ये सागर, ये नदियां, ये झरने, ये सब उसी ने तो दिए हैं, हम सब ले ही तो रहे। जब वो दे रहा है दाता, तुम भी दाता बनो ना। मिन्नी दाता, छोटे वाले। जीवन नहीं दे सकते हो, किसी को भी जीवन नहीं दे सकते हो, पर किसी को भोजन तो दे सकते हो। अच्छा, तुम भोजन भी नहीं दे सकते हो, पैसे कम है, तो किसी को मुस्कान तो दे सकते हो। उसमें भी कुछ पैसे खर्च होते तुम्हारे,
कि बाद में ये गाल दुख जाएंगे तुम्हारे, इधर से खींचो इधर से खींचो, दैट्स इट। कई तो ऐसे सड़े होते वो मुस्कुराना ही भूल गए। मुझे याद आता है, मैं पहले भी एक बार कह चुकी, एक बार शिमला में हम लोग गए एक जगह में, बड़े बड़े देवदार के सुंदर पेड़ हैं वहाँ पर, तो ठंड थी और सामने एक सज्जन ने एक चाय की दुकान खोली हुई थी। तो मेरी नज़र गई उस बंदे पर, उसकी शक्ल ऐसे जैसे लुट पुट के आया है, समझ रहे हो? somebody has, you know, some kind of, you know, burglary has happened to him or something worst has happened. He was such a twisted, you know, forehead, twisted face, very angry, very depressed face, and oh my God. So that day it was my objective, mission possible. इसको तो मुस्कुराना तो पड़ेगा ही। तो I went to him. जैसे मैं गई तो उसकी वही शक्ल बनी रही, गुस्से वाली। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा चाय पिलाएंगे? अब उसने देख लिया मेरे साथ कुछ लोग थे, समझ तो वो गया कि कोई संत वेश है, तो बोले हाँ जी पिएंगे। मैंने कहा पर एक शर्त पे, अगर तुम मुस्कुराओगे तो तेरे से चाय पिएंगे। तो फिर मुस्कुराया वो। तो जब वो मुस्कुराया, मैंने कहा देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो ना। और सच जानिए उसने पूरी चाय मुस्कुरा मुस्कुरा के बनाई। और मेरे साथ कोई 10-15 लोग थे, वो सबने उससे चाय पी। और ये बात है कोई 10 साल पुरानी, और अभी इसी साल मैं दोबारा उसी जगह पे गई तो मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मुस्कुराने लग गया। ये तो फिर आ गई है, ये फिर कुछ बोलेगी नहीं, तो पहले ही शुरू उसका मुस्कुराने का प्रोग्राम वहीं पे शुरू हो गया। मैंने उसे एक ही बात कही, मैंने कहा देख तेरी जो चाय है ना, वो बिना चीनी डाले मीठी हो जाएगी अगर तू ऐसे मुस्कुरा के देगा। माना जिंदगी में मुश्किलें हैं, माना जिंदगी है नहीं आसान, माना जिंदगी में मुश्किलें हैं, माना जिंदगी है नहीं आसान, जरा सा एक एहसास से खुदाई लाओ, मुस्कुराना हो जाए आसान। तो वो मुस्कुराहट आ जाए एक बार, और फिर उस मुस्कुराहट के साथ तुम धन्यवाद दोगे, प्रभु तेरा शुक्र है तूने ये शरीर दिया, प्रभु तेरा शुक्र है ये दिन जीवित हूँ मैं देख रहा हूँ, तेरा शुक्र है तेरे साधु संत प्यारों को मैं मिल रहा हूँ, तेरी कृपा है, तेरी कितनी दया है, आंखें देख रही हैं, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है, पैर चलते हैं, उगता सूर्य देखता हूँ, डूबता सूर्य देखता हूँ, फल सब्जी खा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, तेरे प्यारों को देख के उनसे बात कर सकता हूँ, तेरी कितनी कृपा है। If you begin to live your life like this, then every day will become a celebration. You won't need a Diwali to come. Every day will become a Diwali for you. You don't need some special day, occasion to celebrate. Your every day can change into a celebration. राम सिमर, else पछताएंगे। तो अब सिमरन करें, प्राणायाम करें, आनंद तुम अपना खुद जनरेट कर सकते हो। Let me say this for your benefit. नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से न केवल मन शांत होता है, फिजिकली शरीर के तल पर इसका इतना लाभ होता है, the deeper the breath goes in, the more amount of oxygen goes in, which hits the brain via the blood to your heart, to your intestines, to your major organs. Everything will get replenished with that oxygenated blood. So, जब आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाएगा, और आपकी अगर पैल्पिटेशन या एंजाइटी कुछ आपको होती है तो एक ही बार नहीं, दूसरे बार शाम को भी फिर से 15-1 मिनट के लिए फिर बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। और आपको अगर नींद ठीक नहीं आती है, प्राणायाम करिए, इन अ टाइम यू विल स्लीप लाइक अ बेबी. You won't even toss or turn even once whole night, and you will wake up so energetic and you will wake up so nicely. और जब अच्छी नींद आई होगी तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मल का शरीर से जो निकास होना है,
दैट विल हैपन नाइस। और जब नींद अच्छी हो और आपको कब्ज ना हो, पेट क्लीन हो जाए ठीक से, so good energy. And when you will be automatically in a very good mood, and when you will go out, you will smile more, you will work more. And when you don't sleep nicely, then you wake up constipated. And you have to sit on that toilet bowl for so long, waiting, nothing happening. And then the agitation comes in, and the anger comes in. And now this constipated person goes out, yells at family, yells at wife, goes to office, yells at the office people, and everybody, I don't know why he has anger issues. No, he doesn't have anger issue. He has constipation issue. He has maybe a sleep issue. बेचारा प्राणी ठीक से सोया नहीं है, ठीक से शरीर से मल बाहर नहीं गया है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि करीब करीब 80 बीमारियां होती हैं अगर आपको कब्ज रह जाए तो। और नींद नहीं आई तो समझें बहुत सारी इलनेस जो है सिर्फ मानसिक ही नहीं, शरीर भी आपका बहुत जोर से बीमार हो जाता है। नाउ द मॉडर्न मेडिकल साइंस अग्रीज टू इट दैट मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, फ्रॉम माइंड इट इज कमिंग टू द बॉडी। एंजाइटी कमिंग फ्रॉम माइंड, घबराहट होती है। एक पंजाबी माता डॉक्टर के पास गई, जीपी के पास, जनरल फिजिशियन के पास। डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब पंजाब से आई थी, अंग्रेजी उतनी अच्छी थी नहीं, तो वो कोशिश करे डॉक्टर को समझाएं, तबीयत अच्छी नहीं। डॉक्टर को व्हाट हैपन, कहते दिल हाउ करता है। अब डॉक्टर यहाँ का पला बड़ा, तो उसने अपनी नर्स को बुलाया, बोले कॉल एन इंडियन नर्स। वो आ गई केरला वाली, उसको कहाँ से समझ आए। फिर उसने कहा कि नहीं, गेट अ पंजाबी नर्स। फिर उन्होंने पंजाबी बोलने वाली ढूंढी, तो वो नर्स ने आके कहा माता जी की होया हुण बोलो। एक डॉक्टर ने समझ नहीं आई तुसी की बोलिया। वो कहती काकी मेरा दिल ना हाउ करता है। Then the nurse explained to the doctor that she is having palpitations. Punjabi language became how. What else would she do? Now what will doctor do? Prescribe medicine. Anti-anxiety, sleeping pill, aane do. See me after 2 weeks. My suggestion, do pranayam. You won't need all this. प्राणायाम करें, आसन करें। ये 2 चीजें अगर आपकी ठीक से चलती रही, नींद भी अच्छी हो जाएगी, पाचन अच्छा हो जाएगा। आपका शरीर जब अच्छा चलता है तो स्वभाव में भी अच्छाई आ जाती है। और फिर दिल करेगा अच्छी बात सुनने को, दिल करेगा अच्छी बात बोलने को। अभी अंदर से ही दुखी बेचारे हैं, हाँ, तो आपको दुख देते रहते हैं। और जब मैं कह रही हूं आपको दुख देते रहते हैं, तो तुम्हारा ख्याल ना किसी का बहू पे गया, किसी का सास पे गया, किसी का लड़के पे गया, किसी का लड़की पे गया, थोड़ा अपने ऊपर भी ले जाओ। तुम भी बहुत लोगों को दुख देते हो। जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो सबके दिमाग में ना ऐसे पिक्चर्स आ जाती हैं। और कई बार तो वो पति पत्नी बैठे हो तो कहते देखा, घुमानु सब पता है, देखा। They'll point out to one another. And my God, why can't you point out to yourself? Why can't you see that you are being cause of your own misery and you are being cause of misery to others? And that's not a way to, live. Sumiran kare. And you will see the magic yourself. Don't take my word. Don't trust me. I might be speaking a lie. Right? Find it out yourself. Do 20 minutes of Nadi Shodhan in the morning, 20 minutes in the evening. After 3 weeks or 4 weeks or 6 weeks, you yourself will find the difference coming to you. And always remember, सब छूट जाएगा। मुर्दों का गांव है, सब छूट जाएगा। तेरा ये जिस दिन शरीर पूरा मुर्दा तैयार हो गया, सब छूट जाएगा। तो जब तक ये शरीर है तब तक साधना करनी बनती है।
करनी चाहिए, समय निकालना चाहिए और अपने साधना के आसपास बाकी सब कामों को करते रहिए। जॉब हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, पार्टिंग हो, रिश्तेदारी हो, whatever. Keep on doing that. I don't say don't do anything. Please do that. But take care of yourself first. Be happier, be healthier. शरीर से स्वस्थ, मन से शांत। यही तो जीने का मजा होगा ना, यही जीने का सुख होगा। तो जो आज मैंने कहा नाड़ी शोधन, ये कल सुबह अभ्यास जरूर करिएगा और इसको करते रहिएगा। ऐसे इसका एक एल्बम हमने बनाया है, उसका नाम ही है नाड़ी शोधन, एंड हाउ टू डू द प्रैक्टिस। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सो दोज हु विश टू यूज दैट कैन यूज दैट, एंड बिकॉज इट इज guiding you into how to do that, and for benefit of those who are not here present, so that can be given to them, and it will help you in your practice also. And it's very nice melodious music which comes along, so the mind is enjoying the music and you are enjoying the breathing, and 1 hour will just fly off. True, so true. पता ही नहीं चलेगा कहाँ समय गया। पर फिर वही बात करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो इस अभ्यास के विषय में आज इतना ही। कल जो है मैं एक दूसरा अभ्यास एक और आपको बताऊंगी जो आप कर सके, क्योंकि देखो जो मैं बोलूंगी वो शायद फिर कहूँ सब याद ना रहे, लेकिन अभ्यास की चीजें अगर आपने अपने जीवन में ले आए तो आपके मन का परिवर्तन अपने आप इसी से होने लग जाएगा। चाहे कोई बुरी आदत हो जो आज नहीं छूट रही, आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे अपने आप से वो बुरी आदत छूट जाएगी। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबको मेरे बहुत प्यार भरे प्रणाम। कल आपका पुनः दर्शन करूंगी। कल का सत्संग दिन के 11 बजे होगा, सो 11 बजे की मुलाकात हम लोगों की तय रही। बहुत प्रेम भरे प्रणाम मेरे स्वीकार करे प्रभु।